आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, युगानुयुग जीवित रहने वाला और राज्य करने वाला एकमात्र परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आपका परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, इस सुबह के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और पिता, इस प्रार्थना सभा में प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति को हम मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे बीच में प्रभु उपस्थित होकर हमारी सहायता करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी परिवार प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, उन सब परिवारों को तेरे पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, सारा आदर और महिमा और सम्मान मैं केवल और केवल तुझे देता हूँ। आज की संपूर्ण प्रार्थना सभा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु परमेश्वर में सौंप देता हूँ। और गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तू अपना सामर्थ्य, आशीष और अभिषेक भेजते। जितने भी लोग दुखित है परमेश्वर पिता, जितने भी लोग घायल है, बीमार है, तकलीफ परेशानी में है, भयभीत है, मेरे परमेश्वर, सब प्रकार का डर, भय और चिंताओं को दूर कर, और मेरे परमेश्वर सारी शैतानी ताकतों से, अंधकार की सारी दुष्ट शक्तियों से तू अपने लोगों की, हम सबों की रक्षा करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो स्तुति आराधना प्रभु हम तुझे समर्पित करेंगे, उस स्तुति आराधना को तू कबूल कर, और परमेश्वर अपने लोगों को तेरे उपस्थिति और तेरे सामर्थ्य और अभिषेक से भर दे। और परमेश्वर हर एक आपत्ति विपत्ति से तो अपने लोगों की, हम सबों की रक्षा करना। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, तू सुन और ग्रहण कर। आमेन। ओके, यस ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை நாம் பாடுவோம். हालेलुया। கடந்த வாரமும் கண்மணி போல காத்து மட்டுமாய் நம்மை வழிநடத்த தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்தும்படியாக कुछ तमिल गीत गाएंगे. தமிழ் பாடலை பாடம் எல்லோரும் தெரிந்த பாடம். ஆராதனை கீதங்கள்ல 15வது பாடல், தூய தேவனை துதித்திடுவோம், நேயமாய் நம்மை நடத்தினாரே. எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். கைகளை தட்டி தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாம் அல்லேலூயா.
அல்லேலூயா ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். கடலுக்கு சமமாய் நம் வயது திரும்பவும் வாழ வயதாகும். கடலுக்கு சமமாய் நம் வயது திரும்பவும் வாழ வயதாகும். புது நன்மையால் புது பலத்தால் புது நன்மையால் புது பலத்தால் நிரம்பிய நம்மை திருப்தியாகும். நிரம்பிய நம்மை திருப்தியாகும். தூய தேவனை துதித்திடுவோம். நேயமாய் நம்மை நடத்தினாரே. ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். தாவீது கருவினமாகிருபை தாசரம் நமக்கு தந்திடுவார். தாவீது கருவினமாகிருபை தாசரம் நமக்கு தந்திடுவார். எலிசாவை போல் இரு மடங்கு எலிசாவை போல் இரு மடங்கு வல்லமையால் நம்மை அபிஷேகிப்பார். வல்லமையால் நம்மை அபிஷேகிப்பார். தூய தேவனை துதித்திடுவோம். நேயமாய் நம்மை நடத்தினாரே. ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். நலமுடன் நம்மை இதுவரையும் கர்த்தரின் அருள் என்றும் திருத்தியதே. நலமுடன் நம்மை இதுவரையும் கர்த்தரின் அருள் என்றும் திருத்தியதே. கண்மணி போல் கடைசி வரை கண்மணி போல் கடைசி வரை காத்திடும் பரமனை போற்றிடுவோம். காத்திடும் பரமனை போற்றிடுவோம். தூய தேவனை துதித்திடுவோம். நேயமாய் நம்மை நடத்தினாரே. ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா ஓய புகழுடன் கீதம் பாடி நாம் போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அடுத்ததாக எல்லாம் தெரிந்த பாடல் உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல. எல்லாம் தெரிந்த பாடல் கையில் தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உன் தயை என்னை கைவிடல. அல்லேலூயா. எல்லாம் தெரிந்த பாடல். உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உன் தயை என்னை கைவிடல. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உன் தயை என்னை கைவிடல. வெறுங்கையால் கடந்து வந்தேன், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். வெறுங்கையால் கடந்து வந்தேன், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எல்லோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். எல்லோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். கண்ணீர் சென்றேன் கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தேன். காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீர் சென்றேன் கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தேன். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். எல்லோ
பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர், பெருங்கையாய் கடந்து வந்தேன். பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். வேண்டினோரெல்லாம் விடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு தந்தீர். வேண்டினோரெல்லாம் விடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு தந்தீர். பரதேசியான தாங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தீர். பரதேசியாய் நான் தாங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தீர். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உம் தயை என்னை கைவிடல. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, உம் தயை என்னை கைவிடல. பெருங்கையாய் கடந்து வந்தேன். பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். பெருங்கையாய் கடந்து வந்தேன். பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். எலோஹிம், எலோஹிம், எலோஹிம் உம்மை துதிப்பேன். हालेलुया, हालेलुया। கடைசியாக ஒரு பாடல் அந்த்மே एक गीत गाएंगे. சாங் நம்பர் 13 ஆராதனை கீதங்கள் 13வது பாடல் உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே. எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். சாங் நம்பர் 13 13வது பாடல் ஆராதனை கீதங்கள்ல உம்மை நம்பி வந்தேன் உம் பாதம் பணிந்தேன். ஹalleluya. பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சருளே வரம் பொருளே. பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சருளே வரம் பொருளே. தேடினதால் கண்டடைந்தேன் பாடிட பாடல்கள் ஈந்தளித்தேன். தேடினதால் கண்டடைந்தேன் பாடிட பாடல்கள் ஈந்தளித்தேன். உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. புது என்னையா புது பலத்தார் புதிய கிருபை புது கவியார். புது என்னையார் புது பலத்தார் புதிய கிருபை புது கவியார். நிரப்பினிதாம் நடத்துகின்றீர் நூதன சாலோனில் சேர்ந்திடுவீர். நிரப்பினிதாம் நடத்துகின்றீர் நூதன சாலோனில் சேர்ந்திடுவீர். உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதித்தேன் உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே. நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி எனக்கு அளித்தீர். நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன்
திசை கெட்டங்கோ மலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தனை தாங்குகின்றேன். திசை கெட்டங்கோ மலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தனை தாங்குகிறேன். உன் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை என்று யாரை பாடுவேன். இசையா உந்த நன்று உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்த நன்று உள்ளம் பொங்குதே. என் முன் செல்லும் உம் சமூகம் எனக்கு அளிக்கும் நிலை பாருதல். என் முன் செல்லும் உம் சமூகம் எனக்கு அளிக்கும் நிலை பாருதல். உமது கொலும் உம் தடியோ உண்மையா என்னையும் பேசிடுதே. உமது கொலும் உம் தடியோ உண்மையா என்னையும் பேசிடுதே. பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா உந்த நன்று உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்த நன்று உள்ளம் பொங்குதே. கனி செடி நிலைத்திருக்கும் கொடியாய் அணியேன் படர்ந்திலங்க. கனி செடி நிலைத்திருக்கும் கொடியாய் அணியேன் படர்ந்திலங்க. கிளை நறுக்கி களை பிடுங்கி கர்த்தரை காதனை சுத்தம் செய்தி. கிளை நறுக்கி களை பிடுங்கி கர்த்தரை காதனை சுத்தம் செய்தி. உம் பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா இந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே. இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. Amen. Praise God. पुराने पुस्तक में सॉन्ग नंबर 272. पुराने पुस्तक में सॉन्ग नंबर 272. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेता वो नाम चंगा. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेता वो नाम चंगा. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है.
बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम तो सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो
यीशु मेरा नाम सबसे ऊंचा है, बोलो यीशु मेरा नाम सबसे ऊंचा है। Praise Jesus, hallelujah. Lord, we worship your holy name, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory, hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you for your wonderful presence, oh God. Oh, we love you, Father. We love you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, oh God, and honor and praise and thanks, oh God, to your holy name, oh God. Hallelujah. You alone are worthy, oh God, to receive all glory and honor and praise, oh God, and thanks, oh God. हालेलुया। एकमात्र हालेलुया योग्य परमेश्वर है जो सारी स्तुति और महिमा और आदर और सम्मान को लेने के लिए मेरे प्रभु पिता हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद और तेरी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं मेरे प्रभु पिता। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, we worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're so wonderful, oh God. Oh, Father God, as we praise you and worship you, let thy mighty presence touch each and every heart, oh God. हालेलुया। जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु और कर रहे हैं पिता, यहाँ मौजूद इस हालेलुया प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सभा से जुड़े हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को छू ले प्रभु। कोई भी बीमार हो प्रभु यीशु हालेलुया इस समय वो चंगाई पाए। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करते करते वो पूरी तरह से चंगाई पाए। हालेलुया ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ प्रेज गॉड। प्रभु की उपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, दिल से गाएं। इस समय हम एक मराठी गीत गाएंगे, हा दिवस प्रभुचा आहे। पुराने पुस्तक में नया जो गाना है नंबर 97, पुराने पुस्तक में 97, तारक तो सामर्थ्य तो येशुदेव युगानुयुग आहे। मराठी सॉन्ग गाएंगे, हमारे साथ गाने की कोशिश करें और सब लोग इस मराठी गाने में भाग ले। सॉन्ग नंबर 97। पुराना नेम। ओके, रेडी एवरीबॉडी? हा दिवस प्रभुचा आहे, उल्हास व आनंद करू। हा दिवस प्रभुचा आहे, उल्हास व आनंद करू। किती थोर तो देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले। किती थोर तो देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले। तारक तो सामर्थ्य तो येशुदेव युगानुयुग आहे। तारक तो सामर्थ्य तो येशुदेव युगानुयुग आहे। हालेलुया। Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, 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 hallelujah. चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू। चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। ओ स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे
जय गीत गाओ तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे आहा आहा हालेलुया हो होसाना आहा आहा हालेलुया हो होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातुनी आपणास सोडवितो सैतानी बंधनातुनी आपणास सोडवितो तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे आहा आहा हालेलुया अपने हाथ उठाकर ओ सहना आहा आहा हालेलुया ओ सहना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातुनी आपणा सोडवितो सैतानी बंधनातुनी आपणा सोडवितो तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुयुग आहे आहा आहा हालेलुया हो होसाना हालेलुया हो होसाना हालेलुया हो होसाना हालेलुया हो होसाना Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're such a wonderful God. परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुभव लेकर देखो कि परमेश्वर कितना भला है. Taste and see how God is good. और इन दिनों में हम परमेश्वर का अनुभव कर रहे हैं कि संकट के घड़ी में भी हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परमेश्वर है. वही हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, हमारे लिए छिपने की जगह, हमारे लिए चट्टान है, ऊंचा गढ़ है. उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके करुणा दया भलाई के लिए उसको धन्यवाद करें. प्यारे भाइयों, वही चंगा करता है, वही घायल करता है, वही चंगा भी करता है, वही घाव करता है, वही पट्टी बांधता है. वो यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है. यहोवा राफा है, म्यूट बनते नहीं, करने वाला परमेश्वर. म्यूट परमेश्वर धन्यवाद करो. और तेरा शक्ल भी दिखाई दे रहा. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद स्वर्गीय. मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को इस समय तू छू ले मेरे प्रभु, तेरे सामर्थ्य आत्मा के बाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. सॉन्ग नंबर 39 पुराने पुस्तक में आराधना में जाएंगे. हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है. सॉन्ग नंबर 39 पुराने पुस्तक में. हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है. मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है. उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है. मेरे
मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, जहाँ बेचारा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। साउंड हो गया पर इधर पर ये बच्चे मानो नहीं विश्वासहीनता तुझे, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीनता तुझे, विश्वास मुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आवाज नहीं आ रहा है। क्योंकि वो भला है। मेरे मन तुमने वापस आपको म्यूट कर दिया। क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हमने गाया, जब हम अंधकार से जा रहे थे, यीशु ने हमें हाथ पकड़कर अंधकार से बाहर निकाला और उजियाले में ले आया, क्योंकि हमारा प्रभु भला है। हम विश्वासहीन थे, हम भटक रहे थे बाइबल के, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास योग्यता के द्वारा हमें विश्वास दिलाया, हमारे साथ उसने अपना प्यार जताया। आज उसी के प्यार में तुम और हम स्थिर हैं, इसलिए नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, हम स्थिर हैं, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उसने इतने उपकार हम पर किए हैं, उस उपकार के बदले हम उसे क्या दे सकते हैं? हमने उसके उपकार को जाना नहीं, हमने उसके उपकार के बदले उसके कुछ नहीं दिया, फिर भी उसने हमें अपने गले लगाया। इतना वो हमसे प्यार करता है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर उपकार करता है, वो हम पर दया और करुणा करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपनी भलाई कभी भी छोड़ता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, वो भला है, इसलिए आज हम स्थिर हैं, हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. स्तुति करते हैं प्रभु Thank राजा, you, Jesus. आज के दिन के लिए Thank पिता, you, Lord. हम गीत तेरे नंबर योग्य नहीं प्रभु। नए पुस्तक में गीत नंबर 53, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रियाएं हैं। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। Yes, Lord. यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। 53 सॉन्ग नंबर 53 नए पुस्तक में। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे। यीशुवे यीशुवे जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुवे यीशुवे सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना ऐसे कहते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुवे 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 यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे। यीशुवे धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति करते प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम सब मिलकर तेरी धन्यवाद करते प्रभु जी, और तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते प्रिय परमेश्वर। तेरे वचन कहता है प्रभु कि मैंने इस जगत को जीत लिया है। हालेलुया। तू कहता है कि अंत तक बने रहो। हालेलुया। मैंने इस जगत को जीत लिया है, बीमारी को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है, सारी समस्याओं पर मैंने विजय पाई है। हालेलुया। मुझ पर विश्वास रखो,
ऐसा तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह तो हमसे कहता है कि हम तुझ पर विश्वास रखे। हालेलुया। और तेरे वचन ये भी कहता है कि कर्स इज द मैन हु पुट्स हिज ट्रस्ट इन द मैन, बट ब्लेसेड इज ही हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमें इन दिनों में सहायता करके हम मनुष्य से ज्यादा तुझ पर विश्वास रखे प्रभु जी, किसी मनुष्य पर नहीं प्रभु जी। तूने सारे दुनिया को जीत लिया है प्रभु जी, मृत्यु पर विजय पाई है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, हमें तुझसे कौन अलग कर सकता है प्रभु जी? क्या लॉकडाउन प्रभु जी, क्या कोई गवर्नमेंट प्रभु जी, क्या कोई परिस्थिति हमें तुझसे अलग कर सकेगी? हालेलुया। प्रभु जी, इन दिनों में यीशु मसीह तुझसे प्रेम करने के लिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु जी तुझसे प्रेम करने के लिए हमारी सहायता कर। जब तक हम इकट्ठा मिलते हैं प्रभु जी, हमें बनाए रखना प्रभु जी, हम बने रहे प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। हम मिलने तक, इकट्ठा मिलने तक बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हमारा पैर कहीं फिसल न जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रिय परमेश्वर, हमारे पैर को फिसलने ना दे प्रभु जी। हाँ, अंत तक हम चौकस रहे, अपनी चौकसी करते रहे प्रभु जी, कि हमारा पैर ना फिसले प्रभु जी। और जो हम खड़े हैं, हमें ऐसा लगता है प्रभु जी कि हम खड़े हैं, लेकिन हम गिर रहे, इसलिए हमारी सहायता कर। हम संभले प्रभु जी, हमें संभाल प्रभु जी। हम हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को संभाल प्रभु जी, कि हम गिर न जाए प्रभु जी। हमारी सहायता कर, रक्षा कर प्रभु जी। हम तेरे शरण में आते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता। हालेलुया। हम सब तेरे पास मिलकर मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम सब विश्वास तुझ पर ही रखते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, कि हर एक का हमको खिलाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। इन संकट काल दिनों में प्रभु जी हमारे हर एक जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर तू है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, मनुष्य पर नहीं प्रभु जी। तुझ पर विश्वास रखते हैं कि तू हमें खिलाएगा। हर एक भाई बहन को तू नौकरी देगा प्रभु जी, हर एक भाई बहन को प्रभु जी तू आर्थिक बरकत देगा प्रभु जी। हम तुझ पर विश्वास रखते हैं इन दिनों में। यीशु राजा के नाम से हम मांगते हैं पिता, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। Psalm 83, भजन संहिता 83। Psalm 83, भजन संहिता 83। रेडी? मैं एक वचन पढ़ता हूं, दूसरा आप पढ़िए। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। இதோ உம்முடைய சத்துருக்கள் கொந்தளித்து உம்முடைய பாய்ஞர் தலையடிக்கிறார்கள்। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरी रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। அவரை இனி ஒரு ஜாதியாராலும் இஸ்ரவேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பாருங்கள் என்றார்கள்। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। கேபாலரும் அம்மோனியரும் அமலேக்கியரும் திருவின் अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। அசீரியா அவர்களோட கலந்து லோத்தின் புத்திரருக்கு பயமானார்கள்। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्दानियों से और किशोन नाले से सीसरा और याबिन से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए। நிலத்துக்கு எதுவாய் போன சிறுசா யாபின் என்பவர்களுக்கு செய்தது போலும் அவர்களுக்கு செய்யும்। इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीके और इनके सब प्रधानों को जेबा और सल्मुना के समान कर दे। 12 वचन। வாசஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்கள் கட்டிக்கொள்வோம் என்று சொல்கிறார்கள்। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूलि और पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। நெருப்பு காட்டை கொளுத்துவது போலவும் அக்கினி ஜுவாலையில் மலையில் எரிப்பது போலவும் तू इन्हें अपने आंधी से भगा दे और बवंडर से घबरा दे। கர்த்தாவே, அவர்கள் உமது நாமத்தை தேடும்படிக்கு அவர்கள் முகங்களை அவமானத்தாலே மூடும்। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये लोग जान ले कि केवल तू ही जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। आमेन। गवाही का समय है।
जिनके पास गवाही है अपना हाथ ऊपर करें और अपनी गवाही को दे दे ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हाथ उठा। हाँ। कोई नहीं है। ओके ओके यस सिस्टर प्रजापति बोलिए सिस्टर। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं हाँ एक बोलिए। बीमार चल रही थी। मैंने प्रार्थना किया, इसके बाद मैंने दवा लिए, 4 बार मैंने दवा लिया, मुझे आराम हो के फिर भी बुखार हो जा रहा था और शरीर में कमजोरी भी बता रहा था। मैं फिर गई, कल दवा लेके आई, फिर मुझे आराम नहीं गिरा, थोड़ा भी आराम नहीं गिरा। फिर इसके बाद मेरे पति आज कल उपवास रखे थे। मैंने कहा हे प्रभु, तू हमारी प्रार्थना और हमारे हम लोग के उपवास को प्रभु तू सुन ले। और मुझे कल से आज भी आराम है थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं आराम है। आमेन आमीन। आमेन प्रेज गॉड। प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। बहुत सारे लोग इन दिनों में मैं सुन रहा हूँ प्यारे भाइयों की सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है और डर लगता है कि जब भी किसी को सर्दी खांसी होती है तो उनके मन में डर और भय उत्पन्न होता है कि कहीं मुझे कोरोना हो गया क्या। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको बता देता हूं कि ये सीजन फ्लू चल रहा है, यानी कि गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है, फिर बाद में कई लोगों को इस ऋतु में सर्दी खांसी बुखार ये हो जाती है। आम बात है, हर साल की बात है। इसलिए कोई भाई बहन न डरे, न डॉक्टर के कहने पर कोई जाकर टेस्ट करे, लेकिन प्रार्थना करे, उपाय करे, गर्म पानी पीते रहें और सर्दी खांसी का जो भी उपाय है वो ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हैं और जरूर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। खास करके हमारे सातियोली कलीसिया के लोग बहुत ही बार बार बीमार हो रहे हैं और सातियोली के लिए प्रार्थना करना। वसई वालों की सातियोली में बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। सातियोली में बहुत सारे, तुंगारेश्वर में बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और बहुत लोग डर गए हैं। वहां बहुत सारे इलाके सील कर दिए गए हैं। 3 महीने तक सातियोली में एक भी पेशेंट नहीं था और अब सातियोली में कई सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और ये बड़ी इन लोगों के डर और भय की बात है। तो प्रार्थना करना हमारे भाइयों के लिए, वहां के बहनों के लिए कि वे सुरक्षित रहे। हम रोज प्रार्थना करते हैं और आप भी करते हैं। फिर भी ये एक रिक्वेस्ट है कि वहां की स्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जहां विश्वासी लोग रहते हैं परमेश्वर वहां उनकी सहायता करे। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु के लोग सुरक्षित रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और एक प्रार्थना में रखना कि सोमवार को या ब्रदर या बच्चों का वचन का समय है। कृपा करके हम उस वचनों को सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही। ब्रदर आवाज नहीं है, आवाज। ब्रदर राज, ब्रदर राज आवाज, राज म्यूट करके रखो। 1 मिनट। क्या आवाज नहीं आ रहा है?
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of Lord forever. Psalm 23:6. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Amen. Psalm 121, 7 and 8. Prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23, verse 5 and 6. This word our God forever and ever. He will be our guide even to end death. Okay. Praise God. God bless you, children. परमेश्वर आपको आशीष दे। और कल रात एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। कल मैं डहानू जाऊंगा, डहानू की कलीसिया में, और वहां के लोगों को मिलूंगा, उनके साथ थोड़ी प्रार्थना करूंगा और फिर शाम को वापस आऊंगा। आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमारी सफर परमेश्वर आशीषित करे और जाना आना सुरक्षित, और वहाँ जो भी काम करने जा रहे हैं वहाँ के लोगों को मिलकर उनके साथ प्रार्थना करना, उनको वचन से मार्गदर्शन करना, ये सारी बातें होने के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो जाए। आज शाम को मैं सातियोली कलीसिया में आने वाला हूँ। सातियोली वाले सुने, मैं आज शाम को सातियोली कलीसिया में आने वाला हूँ। बहुत सारी बहनें फोन करके पूछती हैं कि कब आएंगे, तो मैं आज शाम को आऊंगा। एक आध घंटा, 1-2 घंटा मैं उधर रहूंगा। जो भी बहनें आकर प्रार्थना करवाना चाहती है, मिलना चाहते हैं, आप आए और प्रार्थना करके आप जा सकती हैं। तो आज शाम को मैं आऊंगा, करीबन 5:30 बजे मैं वहां आऊंगा और बैठूंगा प्रार्थना के लिए। जो भी आ सकते हैं आओ, जिनको डर नहीं है कोरोना का वो आए और बैठे। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपकी स्तुति और महिमा सम्मान करते इस समय। मेरे प्रभु और परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। आपका वचन हमारे पैर के लिए दीपक और रास्ते के लिए उजियाला है। मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा तू अपने लोगों की सहायता कर। इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे होठ और मेरी जुबान को छू ले और हर एक शब्द प्रभु जो मुख से निकलेगा तेरे सामर्थ्य आत्मा के द्वारा निकले, और ये वचन तेरे लोगों को जो सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबको प्रभु परमेश्वर दिलों को और दिमाग को प्रभु छूकर तेरे लोगों को चंगाई दे, तेरे लोगों को हिम्मत और सामर्थ्य प्रदान करे, और तेरे लोग और भी प्रभु तुझे जाने और तेरी महिमा करे। प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु पिता। ये वचन हमें जिलाने वाला वचन प्रभु हो जाए, ताकि प्रभु हम सब इन दिनों में, इस संकट के समय में प्रभु परमेश्वर तुझ में स्थिर रहे और
फल देने वाले बनते रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन। हम जाएंगे बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब 12वीं अध्याय, और आज मैं इस विषय को खत्म करूंगा। हमने गए दिनों में सुना कि परमेश्वर ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करता है, और जब भी कभी हम गलत रास्ते में जाते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों को शासन करता है, और शासन करना परमेश्वर का अधिकार है। डांटना परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर आपको उसके दासों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा वो डांटेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, आपको बुरा लगेगा, आपको आपके दिल को चोट भी पहुंच सकती है, लेकिन ध्यान में रखना, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है हमें कई बार प्रताड़ित करता है, या हमें कई बार प्रेम से डंडा मारता है, या शासन करता है, या ताड़ना देता है। इसलिए कि तुम और हम पाप के पुत्र नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। और गए दिनों में हमने देखा कि कोई भी ताड़ना, बाइबल कहते हैं 12 अध्याय 11 में बाइबल कहता है कि कोई भी ताड़ना वर्तमान समय में आनंद की बात नहीं होती है। हमें दुख होता है, दर्द होता है। मैं भी उसमें से गया हूं, मुझे भी किसी ने डांटा है, मुझे भी किसी ने कुछ भला बुरा कहा है, मुझे भी दिल को चोट पहुंची है, लेकिन भूल कर उस चीज को सहन करके हम आगे बढ़ते रहे हैं। और बाइबल कहती है कि कोई भी वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। कैसे हम पक्के हो जाते हैं, कैसे हम स्ट्रांग हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं? सहन करते करते। और जिनको सहन करने की आदत होती है और जो सहन करते हैं वो मजबूत इंसान होते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर से हमें ताड़ना मिलती है, हमें दुख और दर्द कभी कभी होता है, तो हम उसको सहन करें, तो क्योंकि उसके बाद बाइबल कहती है कि हमारे अंदर से धर्म का प्रतिफल, बाइबल कहते हैं चैन के साथ, बाद में, उस समय नहीं, कुछ समय के बाद जब हम तैयार होते हैं, परमेश्वर हमें चैन देता है, और चैन के द्वारा धर्म का प्रतिफल बाहर निकलता है। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए कि हम गलत रास्ते में न जाए, इसलिए कि हमसे ज्यादा पाप न हो, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हमें शिक्षा करता है, हमें शासन करता है। इसलिए आगे भाई विल्सन 12-13 वचन पढ़िए, 12 से लेकर 17 तक भाई विल्सन वचन को पढ़ेगा। भाई विल्सन ब्रदर। ओके 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 ओके, मैं पढ़ता हूँ। கைகளையும் தளர்ந்த முழங்காலையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி முடமாயிருக்கிறது பிசகி போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை செவ்வைப்படுத்துங்கள். யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள். பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லை. ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் எழும்பி கலக்கம் உண்டாகாதிருக்கிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கு ஒருவனும் வேசி கள்ளனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள். அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான். Amen. Praise God. मैं पढ़ता हूं। इसलिए
ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के लिए बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। चलो हम उस पर ध्यान करते हैं कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है कि जब शासन होता है, परमेश्वर जब हमें शासन करता है, परमेश्वर जब हमें परीक्षा से ले जाता है, तो हमारे हाथ और पैर या हमारे घुटने निर्बल नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहते हैं इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करो। कई बार लोग जब शासन होता है, परीक्षा होती है, तो क्या होता है ना, लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं, या फिर उनके घुटने कमजोर होने का मतलब कि वे लोग प्रार्थना में कमजोर पड़ते हैं, उनके हाथ प्रभु के सामने नहीं उठते हैं, उनके हाथ के द्वारा प्रभु की सेवा नहीं होती है और वो धीरे धीरे प्रभु से दूर जाते हैं। इसलिए पौलुस चेतावनी देता है कि अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करना। डरना मत जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, जब हमारे साथ गलत होता है, जब हमारे ऊपर कोई परीक्षा आती है, हमारे ऊपर कोई दुख आता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे घुटने टेकना बंद नहीं होना चाहिए। यहां घुटनों का जिक्र किया गया है, हाथों का जिक्र किया गया है। क्या आज हमारे हाथ और हमारे घुटने प्रभु के सामने टिकते हैं? ये हाथ प्रभु के सामने फैलते हैं क्या? सुबह और शाम क्या हम प्रभु की खोज में लगते हैं? बाइबल कहते हैं कि जो भी परीक्षा से जा रहे हैं, जो भी संकट से जा रहे हैं, जो भी किसी प्रकार की बीमारी से जा रही है, परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है कि ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए। ये कौन लंगड़ा है? ये वही लंगड़ा है जो विश्वास में कमजोर पड़ा हुआ है, प्रार्थना में कमजोर पड़ा हुआ है, प्रभु के रास्ते में मार्ग में चलने के लिए कमजोर पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है कि अपने रास्ते, अपने पांव के लिए सीधा रास्ता बनाओ, यानी कि प्रार्थना में रहो, प्रभु के करीब जाओ, ताकि हर एक रुकावट जो आप फेस कर रहे हो या आपके मार्ग में रुकावट है, वो परमेश्वर रुकावट को दूर करेगा अपने पांव के लिए कि लंगड़ा भटक न जाए। आज कई सारे लंगड़े, विश्वास में लंगड़े भटक रहे हैं। परमेश्वर के ओर से शासन, परमेश्वर के ओर से दुख तकलीफ या किसी भाई या बहन या पास्टर के द्वारा कुछ अगर कड़क बात बताई जाती है जिससे दिल को चोट पहुंचती है, वो सहन नहीं कर सकते हैं, वो दूर चले जाते हैं प्रभु से या कलीसिया से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक अहंकार भरा हुआ है या कठोरता भरी हुई है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब उनको शासन किया जाता है, उनको ताड़ना दी जाती है, तो लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और संकट के समय में कलीसिया से दूर चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संकट की घड़ी है। कलीसिया के सब लोगों को एक मन होकर, एक चित्त होकर इन दिनों में प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। ये समय की जरूरत है। अपने घुटनों को, अपने हाथों को सबल करें। हमारे रास्ते से रुकावट को दूर करने के लिए प्रभु कहता है कि आप उस रुकावट को दूर करो, पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। और 14वीं आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजो जिसके बिना प्रभु को कदापि कोई नहीं देखेगा। बाइबल कहते हैं धन पवित्र है वे लोग, जो पवित्र लोग होते हैं वो प्रभु को देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। बिना पवित्रता परमेश्वर को हम देख नहीं पाएंगे, बाइबल कहती है। इसलिए उस पवित्रता के खोजी। कौन पवित्र है? यीशु पवित्र है।
यीशु पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर की हम खोज करेंगे तो उसके द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि उस पवित्रता के खोजी बनो, धार्मिकता के खोजी बनो, भलाई की खोज करो, जो बातें अच्छी है उस पर मन लगाओ, वो हमें पवित्र बनाते। प्रभु के सानिध्य में बैठना, स्तुति आराधना करना, वचन पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ संगति करना, ये सारी बातें हमें पवित्र बनाते हैं। पवित्रता की खोजी हो जाए, क्योंकि हमें परमेश्वर को देखना है। बिना पवित्रता हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग यहां से स्क्रीन से गायब हो गए, पता नहीं वो कहां चले गए। कोई वीडियो चालू नहीं कर रहा है, सिर्फ कोई ऑडियो चालू करता है, वीडियो बंद करता है। मैं कहता हूं कि सब लोग अपना वीडियो भी चालू करो, ऑडियो भी चालू करो, ताकि मैं आपको देख सकूं और आप भी मुझे देख सके। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को देखेगा नहीं। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखो, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें जीना है। अनुग्रह से दूर हो गए तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा मालूम है? कड़वी जड़ फूट निकलेगी। बाइबल कहती है अनुग्रह से जब हम वंचित होते हैं, अनुग्रह से वंचित एक व्यक्ति कब होता है? कब एक व्यक्ति प्रभु के कृपा और अनुग्रह से भटक जाता है? जब वो प्रार्थना छोड़ देता है, जब वो प्रभु के सानिध्य में पवित्रता का खोजी नहीं होता है, वो परमेश्वर की उस उपस्थिति में स्तुति आराधना करना छोड़ देता है, परमेश्वर का अनुग्रह उससे हट जाता है, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह उससे निकल जाती है। और जब प्रभु की कृपा अनुग्रह हट जाते हैं तो ध्यान में रखना, और कुछ बात नहीं होगी, इससे भला नहीं होगा, इससे तुम और हम संकट में आएंगे। बाइबल कहती है कड़वा जड़ फुट निकलेगा। ये कड़वा जड़ कहां से आएगा? शैतान पीछे के दरवाजे से हमारे अंदर एंट्री करेगा। सब लोग सुनो, ध्यान से सुनना। प्रभु के अनुग्रह से वंचित होने का मतलब कि मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दिल से प्रभु से दूर जा रहा हूं, प्रार्थना से भटक रहा हूं, प्रभु के वचन से भटक रहा हूं, सहभागिता से दूर जा रहा हूं, मैं अपने ही मार्ग पर चल रहा हूं। मुझे शासन हुआ, मुझे किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, मैं सहभागिता नहीं करूंगा, मैं चर्च में नहीं आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये मानसिकता शैतान की ओर से होती है। ध्यान से सुनना, आपको भटकाने वाला और कोई नहीं है, शैतान है। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, इन दिनों में प्रभु के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। प्रभु के अनुग्रह से वंचित होने का मतलब कि वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रभु से दूर जा रहा है, कलीसिया से दूर जा रहा है, प्रार्थना से दूर जा रहा है, अपने भाई बहनों से दूर जा रहा है, और अपने ऊपर किए उपकार को भूल बैठा है। और प्रभु के अनुग्रह से वो दूर जा रहा है। कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। ऐसे भाई बहन कलीसिया में उत्पन्न होते हैं, हो जाएंगे, होते रहेंगे। कड़वी जड़ उनके अंदर होती है, और ये कड़वी जड़ जब होती है, वो सिर्फ अकेला बर्बाद नहीं होता है, वो दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने हृदय को परखो, सबसे मेल मिलाप रखो, पवित्रता के खोजी हो जाओ, देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। हम अपने को ध्यान से देखते नहीं कि मेरे अंदर क्या कमी है। हम सबको आज भी प्रभु के साथ में कहना है कि मुझ में ये कमी है। मैं खुद कहता हूं, आपको भी कहना है कि ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित हो जाए और कड़वी जड़ फूटने के लिए। यानी कि जब प्रकाश उजियारा निकल जाएगा तो अंधकार अंदर आएगा, और अंधकार हमें पाप में लेके जाएगा। अंधकार में जो चलता है उसे रास्ता पता नहीं चलता है। अंधकार में जो चलता है वो रास्ते से भटक जाता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि वो ध्यान से देख नहीं रहा है, अपने मार्ग को पहचान नहीं रहा है कि मैं किस मार्ग से, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्या जिस दिशा में, जिस मार्ग में चल रहा हूं, क्या प्रभु को पसंद है? क्या परमेश्वर को वो मेरा मार्ग पसंद है? अगर नहीं तो हमें बचना, हमें देखना चाहिए, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। एक जब व्यक्ति पाप करता है कलीसिया में, एक व्यक्ति जब भटकने लगता है, वो दूसरों को भी कष्ट में डालता है, वो पूरे परिवार को कष्ट में डालता है,
वो सारी कलीसियाओं को कष्ट में डालता है। बाइबल कहते हैं ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी हो या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद को बेच डाला। थोड़ा हम एसाव के बारे में सोचेंगे। ये एसाव कौन है? हालेलुया, इसहाक का पुत्र है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं याकूब और एसाव, ये जो याकूब इसहाक के पुत्र हैं। और आप जानते हैं कहानी को कि जब ये बच्चे बड़े हुए के और एसाव चला गया जंगल में शिकार करने के लिए, वो शिकार खेलने वाला था। इसहाक, उसका बाप जो था, चिकना भोजन, स्वादिष्ट भोजन उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसका बेटा एसाव जंगल में जाता था, याकूब माँ के पास रहता था। और एसाव जाकर जंगल से शिकार करता था और मांस लाकर अपने पिता के लिए खाना पकाता था और अपने पिता को खिलाता था। और पिता के मन में था कि मैं मेरे बेटे एसाव को आशीष दूंगा उसके बदले में, क्योंकि वो बड़ा था और इजराइल के गोत्र के उनके नियम के अनुसार उनका पिता मरने से पहले जेठे व्यक्ति को, जेठा बेटा जो होता है, बड़ा होता है, उसे वो स्पेशल आशीष देता है। और वो आशीष एसाव को मिलने वाला था। लेकिन एसाव ने क्या कर दिया, ये बड़ी दिलचस्प और सीखने लायक बात है कि बाइबल कहते हैं एक बार के भोजन के लिए खाना पीना, क्योंकि जब वो जंगल से आया, बाइबल कहते उसे भूख लगी थी और उसने देखा कि याकूब कुछ लाल दाल पका रहा है, उसकी खुशबू उसको आई और उसने कहा जल्दी मुझे उस दाल में से दे दे ताकि मैं भूखा हूं, मुझे उस पदार्थ में दीजिए, मुझे भूख लगी है। याकूब बहुत होशियार था, चतुर था, धूर्त था। उसने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे जेठेपन का जो बड़ा होने का जो पद है या जो तेरा पद है, जो अधिकार है, वो मुझे तो बेच डाल। बड़े होने का अधिकार होता है, वो अधिकार मुझे बेच डाल। तो उस भूख के समय में, उस स्थिति में एसाव ने नहीं सोचा कि इससे आगे मेरे लिए क्या नुकसान हो सकता है। उस समय की भूख के लिए उसने अपना बड़ा होने का जो अधिकार होता है, जेठा होने का अधिकार होता है, वो उसने यूं ही बेच डाला और कहा ठीक है, मुझे उससे क्या लाभ, मेरा जेठेपन का अधिकार जो है वो तू ले ले, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दे। मेरे भाई और बहनों, ये सब हमें क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है कि प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास में होते हुए परमेश्वर ने हमें पद दिया है। बाइबल कहते हैं यू आर अ होली नेशन, हम एक पवित्र राष्ट्र है, रॉयल प्रीस्टहुड, ये राज के याजकगण है, ओके, उसके खास लोग हैं, निजी धन है। परमेश्वर ने हमें ये सब बनाया है, हम उसके पुत्र हैं, हमें एक स्थान दिया, हमें एक पद दिया है। क्या हम उस पद को, इस विश्वासी होने का पद, हम इस धरती के चीजों के लिए, धरती के सारे, दुनिया के सारे अभिलाषाओं के लिए या सारी मोह माया के लिए हम अपना अधिकार, अपना विश्वास, अपना ईमान हम बेच रहे हैं क्या? आज कई विश्वासी लोग धन संपत्ति, पैसे के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि एसाव के समान वे, ध्यान से सुनना, एसाव के समान वे दुनिया की चीजों के लिए या पेट के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। परमेश्वर ने किए उपकारों को भूल बैठे हैं। कलीसिया में आने के बाद उनको कितना कुछ मिला, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तब वे लोग अपने मार्ग पर चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, वे एसाव के समान होते हैं, वे एसाव के समान होते हैं। उसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलोटे होने का अधिकार बेच डाला और बाद में जब पता चला कि याकूब को आशीष मिला, याकूब उसके मां ने वो धूर्तता के द्वारा इसहाक को फंसा कर आशीष ले लिया और बाद में वो जब जंगल से आ गया, उसने भी खाना बनाया और पिता के पास चला गया, बोलता कि ये ले लो, खाना आपके लिए बनाया है। लेकिन उससे पहले याकूब आकर उसका आशीष ले गया था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना था, पहलोटे होने का अधिकार को तुच्छ जाना था। इसलिए जब
उसके पिता के मरने के दिन आया, इसहाक के मरने के दिन आया, उसने कहा मरने से पहले मैं तुझे आशीष दूंगा। ये आशीष उसको नहीं मिला क्योंकि उसने वो अधिकार बेच दिया था। कई बार विश्वास होने के नाते तुम और हम, परमेश्वर हमारे दिए हुए वचन, अधिकार, परमेश्वर दिए हुए आशीष, जो विश्वास सोने समान, बाइबल कहती है सोने समान विश्वास, हम बेच डालते शैतान को। दुनिया की चीजों के लिए हम अपने आत्मिक जीवन को, अनंत काल की बातों को, अनंत काल के आशीषों को हम बेच डालते हैं शैतान को, या हम आशीषों के पीछे चलते हैं और परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। आशीषों के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। एसाव ने वही किया। बाद में बाइबल कहती है कि उसने वो आशीष पानी चाहा, वो आशीष उसने पाना चाहा, लेकिन उसको वो आशीष नहीं मिला। उसने, बाइबल कहती है, वो रो रो कर, आंसू बहाकर भी खोजने पर उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आज ये समय है मन फिराए, ये समय है, क्योंकि जब कलीसिया उठाकर ले ली जाएगी, तब तुम कितने भी रोएंगे, कितने भी गिड़गिड़ाएंगे, कितने भी आंसू बहाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो उसके बाद हमें कोई भी मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। उसके बाद उस महासंकट में फंसने के बाद रोना और पिटना, या फिर शैतान के अधीन हो जाना, या फिर सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार रहना, ये दो ही चीजें आपके लिए और हमारे लिए होगी, जो भी पीछे रहेगा। अब पश्चाताप का समय है, अब मन फिराव का समय है, अब मन फिराव का, पश्चाताप का समय है। और अगर नहीं तो ध्यान से रखना, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें पद दिया है, जो विश्वासी होने का या परमेश्वर के संतान होने का या प्रभु के राज्य के वारिस होने का अधिकार दिया है, वो अधिकार तुम और हम खो बैठेंगे। ओके, प्रेज़ गॉड। बाइबल कहती है कि हम उस पहाड़ के पास नहीं आए जहां अंधकार और काली घटा, अंधकार आंधी के पास तुरही की ध्वनि, बोलने वाले का ऐसा शब्द जिसके सुनने वालों ने विनती की कि हमसे बातें मत कर। आपको पता है जब मूसा पहाड़ पर चला गया था, परमेश्वर वहां उतर आया था, खुद यहोवा परमेश्वर उतर आया था। वहां की हालात कैसी थी कि 18 वचन 19 वचन में कि वहां क्या था, आग था, आग वहां थी। ओके, काली घटा थी, बादलों का गड़गड़ाहट चल रहा था, बादल वहां गरज रहे थे और आंधी हो रही थी, काली घटा थी। और जब इजराइल लोगों ने ये सब सुना तो बाइबल कहते वो उससे दूर चले गए, बोलते हमसे ऐसी बात करते। हम उस पहाड़ के पास नहीं आए, लेकिन बाइबल कहते हैं 22 वचन, सिय्योन के पहाड़ के पास आए। ये सिय्योन का पहाड़ क्या है? ये सिय्योन का पहाड़ यरूशलेम, जहां परमेश्वर वास करता है, वो स्वर्गीय यरूशलेम के पास। बाइबल कहती है तुम उस सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के पास। 22 वचन में मैं पढ़ता हूं, तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, यानी कि हमारे बारे में कहते हैं हम पहलोटे, प्रवेश में से जो पहलोटा है और उसके साथ हम भी पहलोटे हैं। बाइबल कहते हैं कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं जीवन की किताब में, और उन सब न्यायी परमेश्वर के, सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हम उस यीशु के पास आए हैं जो सबका न्यायी परमेश्वर, आत्माओं का परमेश्वर, उस पवित्र यरूशलेम के पास हम आए हैं। वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें क्या बोलता है? सावधान रहो। 25 वचन में वर्स 25 सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के मुंह से मुड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच निकलेंगे या कैसे बचेंगे? वाह, स्पष्ट वचन कहता है। पृथ्वी पर जब इन लोगों को चेतावनी दी गई, क्योंकि पृथ्वी पर के लोग जब चेतावनी देते वो बच नहीं पाए। मूसा ने उन्हें चेतावनी दी, वे बच नहीं पाए। जंगल में जिन लोगों ने बलवा किया वे बच नहीं पाए, नाश हो गए जंगल में। बाइबल कहती है कि उन्होंने मुंह मोड़कर बच नहीं सके, तो स्वर्ग में से कहने वाला
ये वचन जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वचन, ये बाइबल जो हमारे हाथ में है, ये वचन जो हमें सिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है, सावधानी का इशारा दे रहा है, इन दिनों में सावधान रहो। उस कहने वाले से मुंह मत मोड़ो। जो वचन तुम सुन रहे हो, उस वचन से मुंह मत मोड़ना। बाइबल कहते उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा दी कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को और आकाश को भी हिला दूंगा। और आज प्रभु परमेश्वर पृथ्वी को हिला रहा है। प्रसूति पीड़ाएं हो रही है, रोज भूकंप हो रहे, रोज भूकंप हो रहे, टिड्डियों का आक्रमण, कहीं अकाल, कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, और सबसे ऊपर महामारी चल रही है। कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग डर के मारे ज्यादा मर रहे हैं, कोरोना से कम मर रहे हैं, लोग डर के मारे ज्यादा मर रहे हैं। ये है हमारी दुनिया की हालत। परमेश्वर क्या कर रहा है? बाइबल कहते एक बार फिर, इसका मतलब कि वो समय आ गया है और हम उस समय में रह रहे हैं कि एक बार फिर न कि सिर्फ प्रभु आकाश को लेकिन पृथ्वी को भी हिलाएगा, और वो हिला रहा है। उस समय में हम रह रहे हैं। एक बार फिर यह वाक्य इसलिए लिखा हुआ है कि इस बात को प्रकट करता है। 27 वचन में पढ़ता हूं कि जो वस्तु हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुओं होने के कारण टल जाएंगी। ये सृष्टि टल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाते वे अटल बनी रहे। स्वर्ग कभी हिलाया नहीं जाएगा, और उस स्वर्ग के वासी और स्वर्ग के वारिस तुम और हम हैं। इस कारण हम इस राज्य को पाकर यरूशलेम के राज्य को पाकर, जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, यानी कि धन्यवादित बने रहे, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है, जो इन दिनों में, जैसे कि बाइबल कहते पेतरुस ने भी कहा कि ये वर्तमान धरती आग और गंधक के द्वारा जलाई जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आग और गंधक के द्वारा जलाई जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक बार फिर मैं न कि सिर्फ आकाश को लेकिन पृथ्वी को भी हिलाऊंगा। और आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उसी काल में रह रहे हैं। और आगे कुछ मसीह लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से मैं 1 और 2 वचन पढ़ता हूं। ध्यान से सुनना, 13वां अध्याय, उसी पुस्तक में 13वें अध्याय में पढ़ता हूं, खत्म करता हूं। मसीह जीवन के लिए निर्देश दिए गए हैं जो हमें आज के दिन के लिए सुनना जरूरी है। भाईचारे के प्रति बने रहें, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों के ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि वही हमारी भी देह है, वे हमारे देह है जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक रिपोर्ट मेरे पास आया है कि इन दिनों में मसीह लोगों पर सरकारें अपना सिकंजा कस रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं। कर्नाटक में, ओडिशा में और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहे हैं। मसीह पास्टर लोग या फिर पादरी लोग जिन जिन गांव में जाएंगे, वो कहते हैं जहां भी वो जाएंगे उनको पकड़कर मारो और उनको उस गांव से निकाल दो। ऐसा फरमान निकाला हुआ है। कई सारे गांवों में, कई सारे शहरों में, कई सारे राज्यों में मसीह लोगों पर हमले हो रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट भेजा नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट डरावना है, इसके लिए वो रिपोर्ट के भेजा है। लेकिन कई सारे पास्टर पर हमले हो रहे हैं, मारा भी कई पास्टर लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, और कई सारे इवेंजलिस्ट को मारा गया और उनको धमकी दी गई कि इन लोगों को गांव में आना नहीं देंगे, हम लोग आएंगे तो उनको मार डालेंगे। प्रार्थना करना कि इन दिनों में शैतान कलीसिया पर पहले से बहुत सारे बंधन डाल चुका है, और जबकि मसीह लोग रुकते नहीं काम करना, शैतान उन पर हमले भी कर रहा है। इसलिए ध्यान में रखना, जो बाइबल कहते हैं जो कैदी हैं उनकी सुधि लो, जो सताए जा रहे हैं, जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ खड़े रहो, उनकी सहायता करो। 5वां वचन पढ़कर मैं खत्म करता हूं, उसी पुस्तक में 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो,
क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவர்கள் पढ़ो 5वां वचन। 5 और 6 पढ़ो। अटक गए। ओके, अटक गया उसको। ओके, बाइबल कहते हैं कि इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये परिस्थिति, ये हालातें प्यारे भाई बहनों तुम्हें और हमें ना मार नहीं सकते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तुम और हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमारे लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाइबल कहती है जो है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने खुद कहा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको धोखा नहीं देगा। ध्यान में रखना, जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, कुछ अगर डरे हुए हैं तो ध्यान में रखना, प्रभु कहता है डरो मत, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा। यीशु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जगत को जीत लिया है। यीशु ने कहा, मैंने जगत को जीत लिया है, इसलिए डरना मत। आपके बाजू में भी कोरोना वायरस का पेशेंट निकले ना, तो भी डरना मत, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें और हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती है। यीशु ने हर बीमारी को, हर प्रकार के मृत्यु की ताकतों को, शैतानी ताकतों को जीत लिया है। इसलिए साथी वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके बाजू के घर में भी कोरोना वायरस निकले, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस जम करके, उड़ी मार के आपके घर में, आपके बदन पर आके नहीं बैठता है। ध्यान में रखना, सिर्फ डराने का काम चल रहा है दुनिया में। ये बीमारी इतनी कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन डराने का काम हो कर रहे हैं, और डराने के द्वारा दुनिया की सरकारें, यानी कि शैतान जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले, जिनको ये सारी बातें करनी है, वो दुनिया के लोगों को अपने काबू में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस बीमारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये शैतान की चाल में आप और हम नहीं आएंगे। प्रार्थना करेंगे और उसको परमेश्वर जरूर रोक देगा। हालेलुया। परमेश्वर का कंट्रोल सबके ऊपर है, वो सबों पर राज्य करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा मनुष्यों के राज्य में प्रभुत्व करता है। तो उसका प्रभुत्व है, जो भी आज हालात हैं परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का नियंत्रण है। और जब तक नमक और उजियाला इस धरती पर है, कौन नमक और कौन उजियाला? हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं नमक और मैं उजियाला। जब तक ये नमक, मैं और ये उजियाला धरती पर है, ये धरती को परमेश्वर पूरी तरह से नाश नहीं होने देगा। जब तुम और हम इस दुनिया से निकाले जाएंगे, तब वो अधर्मी प्रकट होने वाला है, जो इस धरती पर कुछ साल के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। उससे पहले जो भी हो रहा है, ये हमें बनाने के लिए, हमें तैयारी करने के लिए प्रभु ने समय दिया है। तैयारी करें, उसके मार्ग में बने रहें, भला काम करें, प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति और महिमा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता, आज का वचन तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता की, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु पिता। और इस समय तेरे लोग जो भी तेरे भंडार में भेंट अर्पण करेंगे, उनकी भेंट को स्वीकार करना परमेश्वर पिता। इस हालात में भी लोग जो सेवा के लिए देंगे प्रभु परमेश्वर, विश्वास योग्यता के द्वारा प्रभु होकर, उन सबका काम धंधा, नौकरी उनके लिए तो आशीषित करना प्रभु परमेश्वर। बाइबल के देखिए, इसहाक ने अकाल में बोया और 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। इस अकाल में, इस संकट की घड़ी में भी लोग प्रभु तेरे भंडार में दे दे, ताकि जो श्राप है, जो बंधन है, जो नुकसान हो रहा है, लूट हो रही है, प्रभु यीशु उस लूट को, उस नुकसान को तो दूर कर दे। खाने वालों को तो डांट परमेश्वर, नुकसान करने वाले टिड्डियां को तो प्रभु परमेश्वर डांट, ताकि तेरे लोग सुरक्षित रहे, तेरे लोगों का काम धंधा सुरक्षित रहे, तेरे लोगों की प्रभु परमेश्वर आमदनी सुरक्षित रहे, तेरे लोगों के घरों में प्रभु किसी चीज की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभु इस समय जो भी तेरे भंडार में तेरे तुझे भेंट अर्पण करेंगे, अपना दान दशमांश अर्पण करेंगे, उनको तो आशीषित करना और उनको तू भला चंगा रखना। प्रभु यीशु मसीह के प्राण से प्रार्थना करता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अपना अपनी भेंट आपके डिब्बे में या आपके थैले में आप डालो, और परमेश्वर आपको आशीष देगा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमेन। या ब्रदर राज